have to create such ambience they should feel that event once they entered your room. And categorize collection under different captions. It will be more catchy to attract more readers to our library. These are the states of India. Even our authority keep visiting library, different event. Children with their favorite book. Retired teacher keep visiting library. I'm back to my screen. Is it visible to you, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. You're Yes, visible. yes. So like this way I had created virtual library. Just click on text or image. You will reach to that collection. So like this way we have designed textbook also available class wise, collection as per the level. It was very difficult to procure any collection which is available online for children because KVS procurement policy it has not supported. And then I had built collection. So each subject collection we have tried. ये हिंदी का पेड़ है, तो हिंदी के पेड़ पे हमने कहानी संग्रह, कविता कोश, राजभाषा विभाग, हिंदी व्याकरण, करंट अफेयर, हिंदी समाचार पत्र, हिंदी बाल पत्रिकाएं, पंचतंत्र. Just click on any title or any text, you will reach to that resource. It may take time to open it, but so like this way, keep opening those resources here. And what are resources enclosed here which are freely available? This is the संस्कृत किताब कलेक्शन, जो संस्कृत का बहुत कलेक्शन कम है. तो इस तरीके से हमने कोशिश की है. जैसे भगवत गीता पे क्लिक किया तो भगवत गीता खुल जाएगी और बच्चों को भगवत गीता पढ़ने को मिल जाएगी, जिसमें ऑडियो भी पढ़ सकते हैं और बाकी उनको PDF में मिल जाएगा. इस तरीके से हर एक वर्चुअल पेज कलेक्शन अपडेट किया. और टीनेजर के लिए हमने चेतन भगत का कलेक्शन जो फ्रीली अवेलेबल है उसको लेके किया है. 100 टॉप ऑथर. जस्ट क्लिक ऑन. थैंक यू. प्लीज कीप अपडेटिंग विथ मी. So like this way, click on any magazine, you will reach to that source. Click on any text, you will go to that page. Just I would like to show you autobiography. So you will see the autobiographies collection, it is given on libraries blog. Just click on any autobiography, you will reach to that collection. So like this way we have prepared libraries virtual library. This is the libraries blog and you can see since 2012 I had started it. It categorized under different caption. I'll be sharing with you, and those few collection keep posting on blog, so it will be easy, and those link are given in virtual library.
So like this way, Hindi, Sanskrit page, Sanskrit textbook, then collection for teenage, topmost 100 authors. Just click on that author's complete work. You can see here. Click on any title, you can open that collection. Then different web educational websites. Just I showed you what a collection and portal launched by Government of India. Swayam Prabha channel, we used to share with our children the schedule, the Udan project. So those, just click, it will open. Then libraries blog, libraries, new website, podcasting channel, YouTube channel, social networking channel. Just click on that, you will come to know. Yesterday's activity I had posted here, so you can see. Can you see the screen, ma'am? Yes, ma'am. We all can see your screen. Yes. So like this way, keep updating your event to social network. It reach to parent, and whatever products or whatever services you will keep marketing of your product or your services. Let it reach out to all. सो इस तरीके से हमें लाइब्रेरी का काम करते वक्त मार्केटिंग पार्ट भी ध्यान रखना है. मार्केटिंग खाली बाहर के कंपनी और शॉप के लिए नहीं है, अभी लाइब्रेरी के लिए तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से एक प्रैक्टिस है कि आप अपने लाइब्रेरी को किस तरीके से आप मार्केट करते हो, किस तरीके से यू आर रेजिंग अवेयरनेस अमंग्स यूजर्स. तो इस तरीके से आप करते जाओ. जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ हर एक इवेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं 2 लाइन टेक्स्ट के साथ हमारी इवेंट हो रही है. तो देखिए बच्चे बुक्स डोनेट कर रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ अपने सोशल मीडिया पे दे रहे हैं. जो बच्चे ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं. तो इस तरीके से करते जाइए. आपके फ़ोटोज़ और आपकी प्रैक्टिसेस यहाँ बोलेगी. डिफरेंट इवेंट यू प्लान. ये फ़ोटोज़ मुझे मोबाइल में नहीं है, मेरा पीसी भी क्रैश हो गया तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया में मैंने जितने अपलोड किए आई कैन कलेक्ट बैक, टेक बैक माई पिक्चर्स फ्रॉम देयर. सो इवेंट सेलिब्रेशन, जो वर्ल्ड नॉलेज डे जो कल है, तो उसके बारे में भी मैंने ऐसे इस तरीके से कर के रखा है, स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो. तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको काम आएगी. आपके फ़ोटोग्राफ प्रिजर्व हो जाएंगे. आपका ये जो सोशल नेटवर्किंग वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है. जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं, जिस तरीके से कैरेक्टर विजिट टू लाइब्रेरी, कैरेक्टर सरप्राइज विजिट टू द क्लासेस, तो ये जितनी भी एक्टिविटी है हम कर रहे हैं तो हमारे यूज़र्स को लाइब्रेरी की तरफ खींचने के लिए कर रहे हैं. वी आर अट्रैक्टिंग आवर यूज़र्स टॉवर्ड्स लाइब्रेरी. तो ये एक ट्रिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस में से कि आपकी लाइब्रेरी एक्टिविटी आप किस तरीके से करते हैं. तो जो भी एक्टिविटी करते हैं, स्टेज प्रोग्राम देते हैं, उसके रिकॉर्ड आप प्रिजर्व कीजिए. सोशल मीडिया आप इस्तेमाल कीजिए. बाय लोडिंग बुक्स विजिट टू प्राइमरी क्लासेस, बाय मेकिंग चार्ट, गिव मॉर्निंग असेंबली इन इनोवेटिव वे. सो इफ़ दे आर नॉट कमिंग टू लाइब्रेरी यू कैन रीच आउट टू स्टूडेंट थ्रू मॉर्निंग असेंबली. और ये मॉर्निंग असेंबली वाला जो है वो चांस आप बिल्कुल मिस कीजिए नहीं, क्योंकि इसमें टाइम पे हम एक साथ सारे बच्चों से हम जुड़ सकते हैं. तो इस तरीके से जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उनसे यहाँ जुड़ सकते हैं, और वो एक्टिविटी आप पोस्ट करके एट अ टाइम आपको इतने लोगों तक पहुँचने होगा कि इसमें सेम लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं. दे कीप गिविंग सजेशन, दे कीप अप्रिशिएटिंग यू ऑल्सो, keep giving suggestion and keep going through other libraries work also, and you can update yourself. So like this way you can plan. मैम मैं अपने प्रेजेंटेशन पे वापस आ चुकी हूँ, तो दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, these are the virtual libraries launched during pandemic. Few of them you must have seen right now. So मुंशी प्रेमचंद का कंप्लीट कलेक्शन आपको एक PDF में यहाँ मिलेगा. मैं आपको दिखाती हूँ. तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी सारी आपके लिए डाउनलोड करके रखी है. सबसे पहले मैं आपको कल की इवेंट के लिए अब दिखाती हूँ. मैम ये दिख रही है कि बताइए? स्क्रीन विजिबल है बट वहाँ पर एक PPT शो हो रहा है. PPT, ओके. मैं फिर से शेयर करती हूँ. थैंक यू मैम. प्लीज़ गिविंग अपडेट बिकॉज आई विल Yes, नॉट ma'am. बी अवेयर व्हाट आई एम शोइंग.
Can you see, ma'am? Is it visible? Yes, ma'am. It's visible now. Yes, thank you. So a tribute to Dr. B.R. Ambedkar, a father of Indian Constitution. So you can see his life story. It is enclosed in one PDF. Pictures are there. Even details are enclosed amongst that text and images. So even they need not to go for any collection. Just they will go through this PDF. They will come to know about this personality, about their life story. They can click on the profile, they can see their profile. So like this way, Ma'am, your screen is not visible now. now is it visible now? Yes, ma'am. It's This is visible. the profile of Dr. B.R. Ambedkar. So like this way, each slide, each image and text is hyperlinked here with sources. Dr. B.R. Ambedkar's biography in Hindi. Then these are the books which are available freely in the form of ebook. Just click on any book and you can see those books. This is the virtual library and books written by Dr. B.R. Ambedkar. Even these books are written by Dr. B.R. Ambedkar, Constitution of India. Just click on that, you will reach to that page. Then these are the books written by him. Then you can see list of books written by Dr. B.R. Ambedkar. Just click on that text, the list will open. Audio books, and those collections are enclosed here within libraries blog. Ma'am, is it visible to you? Yes, ma'am. It's visible. Thank you. So like this way, complete life story of Dr. B.R. Ambedkar by collecting different facts about his life story, different articles posted to libraries blog, and those articles are enclosed in libraries virtual library. So the student need not to go here and there. At one place everything they will be getting latest update from newspaper, blog, audio, video, images. Then class 7th class textbook has a lesson on contribution of Dr. B.R. Ambedkar. That too also enclosed. Then one boy who was asking, who asked why Dr. B.R. Ambedkar's story in textbook. That story's audio and video also enclosed here. So by finding out different videos, audios, different sources under different caption, this virtual library made very creative. So it will give glance to Dr. B.R. Ambedkar's life story. Even selected few videos are given here, some PhD thesis, sources of information, the Wikipedia, different sources what are available here we have enclosed here. Drafting committee complete. So like this way, each and at last honors received by him regarding information about ऑनर्स what are received by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत रत्न. तो भारत रत्न किन्हें दिया जाता है उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन. भारत रत्न पे क्लिक करेंगे तो भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन ईयर वाइज नाम वाइज आपको यहाँ मिल जाएगी. तो इस तरीके से एक एक टेक्स्ट को वर्चुअल लाइब्रेरी में इस तरीके से दिया है कि आप उसके बारे में जान सकते हैं. और जिनको पढ़ना पसंद नहीं दे कैन लिसन पॉडकास्टिंग. तो इस तरीके से पॉडकास्टिंग भी लॉन्च किया है और वो भी यहाँ पे एनक्लोज कर दिया है. Good morning, student. I Sucheta Chandra. तो इस तरीके से एक एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे दे दिया है. और ये लास्ट 56 का जो 1956 का जो पेज था तो वो पेज उस टाइम का पेपर की इमेज ढूंढ के उस लास्ट वाले वर्चुअल लाइब्रेरी के वो लास्ट पेज में दे दिया है. तो इस तरीके से उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है. तो इस तरीके से हर एक वर्चुअल लाइब्रेरी यहाँ पे है तो आप इनको देख सकते हैं हर एक पेज में. अभी हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की फर्स्ट वर्चुअल लाइब्रेरी देखिए, सेकंड है. इस तरीके से हर डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी पे एक एक लॉन्च कर रहे हैं. मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का दिखाना चाहती थी.
Ma'am, can you see the screen? Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you. So like this way, each author's detail we collected, questionnaire prepared, quiz conducted and certificate given in the form of e-certificate. मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ तथ्य मीन्स सबके बारे में हमें पढ़ने के हाँ। बाद ही पता चलेगा. इस तरीके से फ्यू पॉइंट्स हमने दिए कि बच्चे उनके बारे में जाने और इससे उनमें थोड़ी सी क्यूरियासिटी आए और वो उनके बारे में पढ़ना शुरू करें. कुछ आर्टिकल ब्लॉग पे पोस्ट करते वो इनक्लोज किए हैं. फिर उनके बारे में हाँ मैम. Yes, ma'am. Screen is visible, but the that screen in which the collection of all PDF was there, but the PDF of that one Wait, related wait to a Munshi minute. Premchand is not visible. थैंक यू मैम. सॉरी. अब देखिए आ रहा है मैम. Yes, ma'am. It's visible now. Yes. So like this way, whatever photograph available on Google collected from that, then quiz is enclosed here, then few facts about that author, then articles posting on libraries blog which is enclosed here, then इस तरीके से थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि बच्चा थोड़ा पढ़ पाए उनके बारे में, उनका जीवन परिचय. फिर इस तरीके से उनकी जीवनी, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कहाँ है. जस्ट यू कैन क्लिक ऑन एनी टेक्स्ट, इट विल टेक यू टू दैट पेज. So like this way, virtual library is designed in such way, children will get all the things at here itself. They will come to know how many natak, drama he had written, how many fiction are available, how many short stories, कितने प्रसिद्ध उपन्यास है. इस तरीके से उनके बारे में जीवन परिचय से लेके मुंशी जी किस विषय की वजह से विवाद में थे वो भी दिया है. और एक एक स्टोरी को हमने यहाँ enclose किया है. just click on any story, they can read any story. so like this collection, मुंशी प्रेमचंद का बर्थ प्लेस, वहाँ पे भी वर्चुअल टूर में मैं तो ये मुंशी प्रेमचंद का गांव का वर्चुअल टूर हमने लिया था. भाषा संस्कृति प्राण देश के, इनके रहते राष्ट्र रहेगा. मैम, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. It's visible and audible too. थैंक यू. भारत माँ का मान बढ़ेगा. भारत में जन्म. तो इस तरीके से वर्चुअल लाइब्रेरी को आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें खाली टेक्स्ट ही नहीं, ऑडियो वीडियो मीन्स ये मोर इंटरेक्टिव कैची हो जाए कि बच्चा उसको देखे बिना रहेगा नहीं. पढ़ने से थक गया वीडियो देख लेगा, वीडियो से थक गया ऑडियो सुन लेगा. तो इस तरीके से आप मुंशी प्रेमचंद मीन्स जो भी वर्चुअल लाइब्रेरी बनी है उस हर एक वर्चुअल लाइब्रेरी की ये खासियत है कि जैसे कि टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के है वो भी हमने ढूंढ के यहाँ दिया है कि बच्चों के सिलेबस में क्लास 9 थ्रू तो हमने ये बच्चों को पढ़ाई का एक लेसन हो गया लाइब्रेरी के एक क्लास में. CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेमचंद का बचपन. तो इस तरीके से आप अपने वर्चुअल लाइब्रेरी को डिज़ाइन करते वक्त हर एक लेवल को देख के, जैसे मैंने बोला कि टेलर मेड सर्विस, बच्चों की रिक्वायरमेंट देख के आप बनाइए जिसमें छोटा छोटा सा है, सादा सा है, लेकिन प्रेमचंद के बारे में इतना एक जगह पे उन्हें मिलेगा तो हिंदी भाषा का प्रसार भी होगा, बच्चों में पढ़ने की रुचि आ जाएगी और बच्चे एक के बाद एक देखते जाएंगे, रुकेंगे नहीं. और ये वर्चुअल लाइब्रेरी इस तरीके से काम करेगी कि सोर्स तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं, सोर्स उनके डोर प्लेस में पहुंच रहा है. और ये खाली बच्चों के लिए काम नहीं आ रहा है, उनके पेरेंट भी पढ़ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट भी पढ़ रहे हैं. तो ये वर्चुअल लाइब्रेरी सीमित नहीं रही खाली बच्चों तक. तो जैसे कि इसमें ईदगाह,
ये तो बहुत बढ़िया कहानी जो मैंने पैंडामिक में हर एक क्लास के बच्चे को दिखाई, जो अपने ग्रैंडमा के लिए अपने पॉकेट मनी से चिमटा ले आता है रोटी सेकने का। मीन्स अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो फीलिंग क्रिएट करना, अपनों के बारे में सोचना। तो यही हमारा जो है बच्चों का अवेकन सिटीज़न बनाना है उन्हें। तो ये लाइब्रेरी के ये प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। और देते वक्त खाली फिजिकल रिसोर्सेस ही मत सोचिए, डिजिटल रिसोर्सेस बैक एंड में प्लान करते जाइए। इवेंट आने वाला है तो उस इवेंट की तैयारी इस तरीके से कीजिए कि इवेंट के सुबह में बच्चा मोबाइल खोले, या स्कूल में जैसे हम असेंबली प्लान करते हैं उस पर्टिकुलर डे की इवेंट, इस तरीके से आप प्लान कीजिए कि उनके व्हाट्सएप में अभी मिल सकता है। बच्चा लाइब्रेरी तक आए ना आए, सब चीज़ उन तक पहुंच सकती है। आप देखिए प्रेमचंद की हिंदी कहानियाँ, जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो कहानी खुल जाएगी। इस तरीके से ये मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ गद्य कोश है जो मानव सरोवर क्लास भाग 1 से 7 तक हर एक के लाइब्रेरी में है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उनके लेख, पत्र, बाल साहित्य, बाल संस्मरण नाटक है। कुछ विषय से वो ये पीएचडी के प्रबंध है, पीएचडी में इनके ऊपर पीएचडी हो चुकी है। जयंती के उपलक्ष्य में वर्चुअल कलेक्शन, जैसे कि उस टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं आ सकते थे, तो ये वर्चुअल इमेजेस ली मैंने गूगल से और ये पुस्तक प्रदर्शनी बना दी कि बच्चों को घर बैठे बैठे एक पुस्तक प्रदर्शनी देख ली ऐसे लगेगा। तो मीन्स उस दिन की इवेंट की जो अहमियत है वो रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पुस्तक प्रदर्शनी के पन्ने हैं जो बस इमेजेस के फॉर्म है, लास्ट वाले। तो इस तरीके से बहुत सारी वर्चुअल लाइब्रेरीज बनाई है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके साथ 2 वर्चुअल लाइब्रेरी शेयर की है। सो आई विल गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन अगेन। तो इस तरीके से बस आपको अभी मैं इमेजेस दिखाऊंगी कि जैसे हमने ये गांधी जी के ऊपर बनाया है। ये भी सबसे बड़ा, लगभग मोर देन 57 पेजेस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का रीडिंग इंस्पिरेशन, वर्ल्ड रीडिंग इंस्पिरेशन डे मनाया जाता है। तो उनकी वर्चुअल लाइब्रेरी आप देख सकते हो किस तरीके से बनी है। उससे पहले एक और दिखाना चाहती हूँ, जैसे क्लास 6 to 12 के लिए लेवल वाइज स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने बोला टेलर मेड सर्विस। तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक ये नवोदय विद्यालय का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। सब्जेक्ट पे क्लिक करने पर सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक खुल जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बुक के लेसन्स खुल जाएंगे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम यू कैन कंडक्ट, देन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स जो क्लास 10th, 9th, 11th के लिए, वर्चुअल लाइब्रेरी ऑन डे सेलिब्रेशन जस्ट आई टोल्ड यू। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्चुअल लाइब्रेरी स्टेट्स की बनी है, जिस पे किसी भी स्टेट पे आप क्लिक करेंगे तो वो स्टेट की इंफॉर्मेशन। Screen is not visible. Printing now, but it stopped now, ma'am. Yeah, I had stopped it, ma'am. It was not visible to me. Is it visible to you, ma'am? Yes, ma'am. It's visible now. So you can see लाइब्रेरियन का काम बस किताब ही देना नहीं, आप यहाँ पे भी स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जो हमारे सोर्सेस है उन सोर्सेस को लेके मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, आप देख लेना। यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, ये पॉडकास्टिंग है, ये वर्चुअल टूर आपको दिखाई, ई कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, जस्ट गाइड चिल्ड्रन टेकिंग वर्चुअल टूर। और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। तो उस सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आप अपना
खुद का काम जो क्लास में जैसे जूम में मीटिंग लेते तो गूगल मीट में भी रिकॉर्डिंग आता होगा, उस रिकॉर्डिंग को एडिट करके ओपन शॉट सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही कट करके आप यूट्यूब पे पोस्ट करके उसकी लिंक बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है लाइब्रेरी की एक एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो टॉपिक इज़ ओवर मैम, इट्स ओपन टू ऑल। इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर आई विल कंक्लूड हियर। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. The It things is are there, but I would like to conclude here. Keep updating yourself by attending different workshops, seminars. This is the Wacklet at last. Wacklet, I will share link with you. So it's a very easy. Just keep sharing link with children by planning event wise. So you can go for Wacklet also and update yourself by attending different programs. And present yourself. Thank you. Thank you so much, ma'am. The way you have done your work, it is really remarkable. Means time is short. Otherwise, we can see the whole. And I'm like, I'm thinking that I can reach to all that content, because even one PDF, and in one PDF, one page is like you can spend your 4 to 5 hours in only one page. You have designed it like that, because when we are going to click only one word, we are going of knowledge. So the way you have done it is wonderful, ma'am, and I would like to request all the librarians to just give a round of applause to ma'am. Thank you very much. Actually, these are the tailor-made services we should learn, and we should focus on our user group, and as per user group requirement we should provide service. Thank you very much to Tinsukia region, Deputy Commissioner John sir, Principal Firoz Khan sir, and all the learned colleagues. You patiently listened my presentation, and I'm very happy I could got opportunity to interact with you all. Thank you very much. Thank you, Thank ma'am. you. So now I Very would much, like- madam. Really, it was very enlightening session, and I am speechless what to say. And I would say to all my participants, it was more than a motivational session. And the way what you have done, I don't know how you are getting so much of time. So we need it, how you are getting so much of time for involving yourself in so much of activities. Yes. I could see you are involved in each and every activity of the Vidyalaya. So I don't know how you are getting so much of time. So, but we are blessed, madam. It was really a very interactive session, and we are blessed with your session. And I am speechless. What I should say. Thank you, sir. And we are enlightened with your session. Thank you, Thank you so much, madam. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. And